اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اے بنی آدم قد انزلنا بے شک ہم نے اتارا علیکم تمہارے لیے لباس بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جواری جو ڈھانپتا ہے سوآتکم وریشا جو تمہاری زینت اور شرم کی چیزیں چھپاتا ہے جو تمہاری زینت اور شرم کی چیزیں چھپاتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور تقوی کا لباس ذَلِكَ خیر اور وہی بہتر ہے ذَلِكَ من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور اولاد آدم کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے اسی لباس کے متعلق پڑھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ اس وقت اجتہادی خطا کے طور پر گندم کا دانہ یا جو انجیر کا دانہ تھا وہ کھا بیٹھے، تو دونوں کی جو تھے وہ سطر کھل گئے، دونوں کے لباس اتر گئے تھے۔ تو اس سے اس بات کو اس طرح جوڑیں گے کہ وہاں لباس کا ذکر کیا، وہاں پر لباس کا ذکر کیا گیا، کس کانٹیکٹ میں کیا گیا کہ لباس انسان کو چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کو چھپاتا ہے۔ لباس اصل میں یہ لباسا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے، لباسا کا معنی ہے کسی شے کو چھپا لینا۔ لباسا کا معنی کیا ہے؟ کسی شے کو چھپا لینا۔ اور اس کو لباس اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی قبیح چیزوں کو بھی چھپا لیتا ہے، انسان کی شرم کی چیزوں کو، شرم گاہوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ اس کا تذکرہ کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شوہر کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ شوہر اپنی بیوی اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر اور بیوی کے جو تعلق ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اسی لباس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، ہن لباس لکم، عورتوں سے کہا کہ تم ان کے لیے لباس ہو، اور مردوں سے کہا وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بھی یہی بات کی گئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی قبیح چیزوں کو، شوہر اپنی بیوی کی بری باتوں کو، شوہر اپنی بیوی کے غلط معاملات کو، شوہر اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور بیوی بھی وہی ہے جو اپنے شوہر کی بری باتوں کو، اس کے عیبوں کو چھپائے۔ شوہر بھی وہی ہے جو اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپائے، اور بیوی بھی وہی ہے جو اپنے شوہر کی بری باتوں کو، اس کے عیبوں کو چھپائے، نہ یہ کہ اپنے گھر کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، نہ یہ کہ اپنے شوہر کی ان بری خصلتوں کو، ان بری عادتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، نہ یہ کہ جو بیوی ہے کسی اپنے شوہر کی ان باتوں کو اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے مائکے والوں کو، سب کو ان کو بتائے کہ اس کے اندر یہ عادات ہیں
औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए लिबास है। लिबास का मतलब क्या है? लिबास का मतलब है कि वो अपने इस ताल्लुक़ के अंदर मियाँ बीवी के और मियाँ के जो भी उनकी बुरी आदत हैं, बुरी खसलतें हैं, जो भी उनके घर के मामलात हैं, जो भी उनकी राज की बातें हैं, तो वो राज ही रहे, राज ही रहे, मरते दम तक वो उसको किसी पर जाहिर ना करे। इसलिए उस औरत को मर्द का और मर्द को औरत का लिबास करार दिया गया। समझ में आई ये बात? और इसी एतबार से आगे यहाँ फरमाया वलिबासुत तक़वा, वलिबासुत तक़वा। फरमाया तक़वा का माना ये है कि बुरे अकायद, जैसे इंसान को लिबास उसकी बुरी खसलतें, उसके अंदर जो भी ऐब हैं, उसके अयूब को, उसकी शर्म की चीज़ों को जैसे लिबास ढांप लेता है, इस तरह फरमाया तक़वा का लिबास इंसान के बुरे अकायद, बुरे आमाल और इन तमाम चीज़ों को तर्क कर देना और पाकीदा सीरत को इख्तियार कर लेना, तक़वा का लिबास ओढ़ लेना और इन सारी गंदी और गलीज़ बातों को तर्क कर देना, वो लिबास फरमाया तक़वा का है। और तक़वा का लिबास ही सबसे बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इससे इंसान के अंदर की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म होती हैं और उसके अंदर नेक काम परवान चढ़ते हैं। इसी तरह फरमाया जिस तरह कपड़े जो हैं वो इंसान को सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, बरसात के मौसमों की शिद्दत से उसको महफूज करते हैं, फरमाया इसी तरह तक़वा का लिबास भी इंसान को उखरवी अजाब से महफूज कर देता है। तक़वा का लिबास भी इंसान को, जो इंसान मुत्तकी बन जाता है, तक़वा का लिबास ओढ़ लेता है, तो जैसे लिबास हमारे वजूद पे है, हमें गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, गर्मी की शिद्दत से, मौसमों की हिद्दत से हमें ये लिबास महफूज करता है। तो फरमाया जिसने तक़वा इख्तियार कर लिया, तक़वा का लिबास ओढ़ लिया, ये तक़वा का लिबास उसे अल्लाह के उखरवी अजाबों से महफूज फरमा देगा। इसी तरह आपने गौर किया अगर, तो यहाँ पर आया वरीशा, लफ्ज़ क्या आया है? वरीशा। और ये रीश से है। रीश परिंदे के पर को कहते हैं। रीश किसे कहते हैं? परिंदे के पर को कहते हैं। परिंदे के लिए जो पर हैं वो ऐसे ही है जैसे इंसान के लिए लिबास है। परिंदे के पर उसके लिए कैसे हैं? जैसे इंसान के लिए लिबास है। इसलिए इंसान के लिबास को भी रीश कहते हैं। इसलिए इंसान के लिबास को भी क्या कहते हैं? रीश कहते हैं। और ये रीश से जीनत और खूबसूरती का माना भी मुराद लिया गया है। रीश से क्या मुराद लिया गया है? खूबसूरती भी और जीनत का भी इससे मुराद ली गई है। तो इस आयत को अगर हम गौर से तिलावत करें, गौर से पढ़ें, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसान पर बेपाया जो एहसानात हैं, बेपाया एहसानात हैं, जो लातादाद नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, उन नेमतों में से एक नेमत ये लिबास भी है। उन नेमतों में से एक नेमत क्या है? लिबास। तो लिबास कैसा होना चाहिए? हमें ये भी देखना है, समझना है। लिबास कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो इस माने के अंदर पूरा उतरता हो, जो लिबास के मानों में पूरा उतरता हो। लिबास का माना होता है ढांपना। लिबास का माना क्या होता है? ढांपना। जैसे औरत, लफ्ज़ औरत इस्तेमाल किया गया ना ख़वातीन के लिए, तो इस औरत का माना और मफ़हूम अगर देखा जाए तो उसका माना भी है छुपी हुई चीज़। अब औरत तो वही कहलाएगी ना जो छुपी हुई है। औरत तो वही कहलाएगी कि जो सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल उसका वजूद छुपा हुआ हो। अब इस माने के एतबार से आप अपने गिरदो पेश में जायज़ा लीजिए, अपने इर्द गिर्द आप ज़रा नज़रें घुमाइए, मुआशरे के अंदर देखिए कि लफ्ज़ औरत इस माने के अंदर हम उतरते हैं या नहीं उतरते। हम इस माने के मफ़हूम को समझने के लिए अपनी सोसाइटी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ़ फंक्शंस को जज करें, शादी ब्याह के फंक्शंस को जज करें। हम अपने रोज़मर्रा के मामलात को देखें कि ख़वातीन जिनको औरत कहा गया है, क्या उनके लिबास वो हैं जो वाक़अतन उसको औरत के माना में, उस मफ़हूम में सामने लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम आज की इस सोसाइटी में देखें जो वेल एजुकेटेड सोसाइटी समझी जाती हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और जो खाते पीते घराने हैं, अगर आप वहाँ पर गौर करें तो वहाँ पर आजकल साड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है।
साड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह ऐसे टाइट लिबास पहने जाते हैं जिस लिबास का मतलब क्या है कि पहना भी हुआ है लेकिन ना पहनने जैसा है। और ऐसी वैरायटीज़ आजकल जो है ना फैशन में आ चुकी हैं कि वो लिबास ऐसे हैं कि जिसमें से पूरे बाजू नंगे होते हैं, ठीक है, पिंडलियाँ नंगी होती हैं। ऐसे लिबास हैं जिससे पेट तक नंगा होता है, पीठ पूरी की पूरी नंगी होती है। अब जब हम इन चीज़ों को अपने मुआशरे में देखते हैं और सोशल मीडिया में जब हम ऐसा फैशन देखते हैं, ऐसा ट्रेंड देखते हैं कि जिसमें ख़वातीन, जिसमें लड़कियां ऐसा पहन कर आ रही होती हैं, तो एक ख्वाहिश हमारे दिल में भी आती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये तो खूबसूरत लग रही है, तो बहुत प्यारी लग रही है। दर हकीकत वो प्यारी नहीं लग रही होती। दर हकीकत वो अपने घर का, अपने माँ बाप का और अपनी जो तरबियत का इजहार कर रही होती है कि मेरी घर से तरबियत ये है, मेरे माँ बाप ने मुझे इस अंदाज से परवान चढ़ाया है कि मेरे लिए लिबास का पहनना या ना पहनना बराबर है। ये लिबास इंसान को ढांप रहा है, तो अगर हम वो लिबास पहने ही कोई ना, तो हम फिर नंगे हैं। और जब इंसान नंगा है तो फिर वो नंगा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल नहीं है, बल्कि मरदूद है। अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करते जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करने में जुर्रत करता हो। अल्लाह उसे पसंद करते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी करता हो। तो आपको ये जानना चाहिए कि मर्द हो या औरत हो, उसको हुक्म दिया गया कि वो अपने जिस्म को ढांप कर रखे। ये बेहूदगी है मर्द के लिए भी कि वो उसका असल में देखिए सतर है मर्द का नाभ से लेकर घुटने तक, औरत का सतर है 2 हाथ और 2 पाँव और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म सतर है, छुपाना चाहिए उसे। अब मर्द ये कहे, अगर कोई मर्द ये कहे कि मुझ पर नाभ से लेकर घुटनों तक ये जो हिस्सा है ढांपना फ़र्ज है, बाकी मैं पूरा पेट पूरा जिस्म नंगा रखूं, मुझे कौन रोकने वाला है, तो ये भी इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बात है। हम अपने घरों में अपने भाइयों से जहाँ तक हमारा असर व रसूख है, जहाँ तक हम बात कर सकते हों, अपने शागिर्दों की हद तक, अपने भाइयों की हद तक हम उन सब को तलकीन करें। और जहाँ तक अपनी बहनों की हद तक हम शुरू से ही, बचपन से ही इन चीज़ों को रासिख करने की कोशिश करें कि पर्दे में रहें, अपने लिबास को ढांप कर रखें, अपने पूरे जिस्म को ढांप कर रखें, ऐसा लिबास पहने जिससे आगे जिस्म झलकता नज़र ना आए। भाइयों को ये कहें कि घर से निकलें बाहर, या घर में भी हों, बहनों के सामने भी हों, बेटियों के सामने भी हों, तो हत्तल अमकान कोशिश यही करें कि अपने जिस्म को मुकम्मल ढांपें। कहीं अगर कपड़े चेंज करने हैं तो सबके सामने नहीं, समझ आ रही है, कमीज़ उतारना हो सबके सामने नहीं। इन सब चीज़ों का ये एक एटिकेट्स हैं, ये इखलाकियात हैं। इंसान को समझना चाहिए कि मैं एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये जो हुक्म दिया है कि अपने लिबास को मेरे लिए जो लिबास उतारा है, तो वो हुक्म दिया गया है कि अपने जिस्म को ढांप कर रखे और ऐसे शरेआम अपने वजूद से कपड़े मत उतारे। और ये चीज़ ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह की तालीमात यही हैं। अमल कर लेंगे तो हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे, नहीं अमल करेंगे तो कल पकड़ होगी, और जब पकड़ होगी तो हर एक ने अपना जवाब खुद देना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।